was 78,772 deaths. Talking of deaths worldwide, the US and Brazil are followed by the UK with over 45,358 fatalities, further followed by Mexico, Italy and France. Meanwhile, the flood situation in Bangladesh continues to be grim as rivers in the Brahmaputra and Meghna basins showed rising trends in majority of the places. Over the last 24 hours, water levels increased at 18 points in the Brahmaputra basin, and while in the Ganga and Meghna basins, rivers were flowing above the danger level in 3 different areas. Several places in the country received heavy rains over the last 24 hours. In the Brahmaputra basin, Kurigram, Dalia and Rangpur received above 100 mm rain during this period. According to the Ministry of Disaster Management, floods have affected more than 23,60,000 people in 18 districts of Bangladesh, leading to the death of 8 people in the country. And England were left frustrated by the weather and faced a race against time to level the series against the West Indies after the 3rd day of the second test was washed out in Old Trafford. Morning drizzles in Manchester worsened into heavy rains that simply did not relent, and play was finally abandoned. The West Indies will resume Sunday morning on 32 for 1 in reply to England's first innings 469 for 9 declared, with Craig Brathwaite 6 not out and night watchman Alzarri Joseph unbeaten at 14. Opener John Campbell fell for 12 on Friday. Ben Stokes top scored in England's innings with 176, his 10th test century, while Dom Sibley hit 120, his second ton. Off-spinner Roston Chase was the most effective West Indies bowler. He took 5 for 172 and pacer Kemar Roach picked up 2 for 58. West Indies won the first test in Southampton by 4 wickets. The third and final match is also in Manchester. And with that, it's a wrap on this edition of the news. News and updates continue on DD News and DD India. Namaskar. Is your house secure during an earthquake? While buying a house, always seek guidance from a structural engineer. Find out, has the soil testing been done here? Is the house built as per National Building Code 2005? You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन, राशन के वितरण के ऑनलाइन हो जाने और राशन की दुकान पर आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए से संभव हो पाई पोर्टेबिलिटी। कुछ राज्यों ने राशन कार्ड की राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी लागू की है। अब इन राज्यों के लाभार्थी राज्य के किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। पहले अपनी दुकान पर से राशन लेते थे, काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब नगर में अच्छी सुविधा हो गई है, जो हम दुकान हमारा बंद भी रहता है तो हम कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने राशन की दुकान बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ उन लाभार्थियों को जिन्हें काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने हिस्से का कुछ राशन अपने काम की जगह ले सकता है, जबकि उसका परिवार बाकी राशन अपने गांव में ले सकता है। पोर्टेबिलिटी के बाद अब दुकानदारों की मनमानी खत्म हो गई है। जहां से हम पहले राशन लेते थे उनका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। नई सुविधा चलने के बाद अब हम यहां से राशन लेते हैं और हमें सही समय पर राशन मिल जाता है। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। जब से पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हुई है, हमारे सारे राशन डीलरों में वितरण के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। हर डीलर अधिक से अधिक वितरण करना चाहता है और कार्डधारी को भी कोई समस्या नहीं हो रही है। हालांकि ये सुविधा अभी कुछ राज्यों में ही ली जा सकती है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है।
ताकि देश के हर नागरिक को ये सुविधा मिले कि वो अपने राशन कार्ड की सुविधा देश के किसी भी राज्य में ले सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा साकं दूरभाषमाध्यमेन सम्भाष्य राज्ये समुत्पन्न जलौघस्थितिं समैक्षत। बागवान तैलकूपे अग्निशमनपरा कोरोना संक्रमण विषयिणी च चर्चा संजाता। केन्द्रपक्षतः सर्वसम्भव साहाय्याय समाश्वासितम्। दिल्ल्यां बृहन्मात्रायाम् अतिवृष्टिः। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि 21 दिनाङ्कं यावत् वृष्टिः सम्भाविता। बिहारराज्ये नद्यः सङ्कटचिह्नम् अतिक्रम्य प्रवहन्ति। स्थितिः गभीरा। बिहारराज्ये कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं स्थितिं समीक्षितुं केन्द्रीय स्वास्थ्यदलं राज्ययात्रायां। देशे कोरोना प्रकरणानि प्रारम्भिके स्तरे अभिज्ञाय जनजीवनं सत्रासयितुं प्रशासनं कटिबद्धम्। बृहन्मात्रायां परीक्षणानि विधीयन्ते। अधिभारतं कोरोना संक्रमणात् स्वास्थ्यलाभे परिष्कारः। देशे 70,000+ 6 जनाः कोरोना संक्रमणं पराभूतवन्तः। 73,000+ 3 संख्याकानि सक्रियप्रकरणानि। ईटानगरे आगमनिर्गमरोधादेशः आगामि 3 दिवसं यावत् विवर्धितः। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य असम राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणं सर्बानन्द सोनोवालेन साकं दूरभाषमाध्यमेन सम्भाष्य राज्ये समुत्पन्नां जलौघस्थितिं समैक्षत। प्रधानमन्त्रिणा बागजान इत्याख्ये तैलकूपे अग्निशमनोपायाः, कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं नियन्त्रयितुं कृतकार्यविषये अपि चर्चा कृता। राज्यस्य मुख्यमन्त्री सर्बानन्द सोनोवालः ट्वीटमुखेन इदं संसूचयत्। तेन प्रोक्तं प्रधानमंत्री समुपजातस्थितिम् आलक्ष्य चिन्तां प्राकाटयत्। केन्द्रप्रशासनद्वारा सर्वसम्भव साहाय्याय तेन आश्वासितम्। उक्तं च अस्यां स्थितौ राज्यवासिभिः साकं वर्तते। असम राज्ये विगत दिवसैः अतिवृष्टिः कारणात् जलौघस्थितिः सञ्जाता। वर्षासु स्वल्पीभूते जलौघ परिष्कारः। यद्यपि इदानीमपि राज्यस्य 26 जनपदानाम् 8,600,200 ग्रामेषु 27.5 लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः। जलौघ कारणेन दिवङ्गतानां संख्या 79 अभवत्। अतोऽतिरिच्य विगत 24 होरासु अपि 3 अन्ते मृताः। राज्ये चलायमानेषु 90-200 स्वास्थ्य शिबिरेषु अधुना पर्यन्तं प्रायः 47,000 जनाः शिबिरेषु शरणार्थिनः सन्ति। इदानीं जलस्तरे स्वल्पता परिलक्ष्यते। ब्रह्मपुत्रं तत्सहायक नद्यः प्रायः 8 जनपदेषु सङ्कटचिह्नम् अतिक्रम्य प्रवहन्ति। बिहारराज्ये सर्वासु नदीषु जलप्रवाहो अतितीव्रावस्थायां। सत्यां जलौघस्थितिः वर्तते शोचनीया। बूढ़ी गण्डक नद्यां जलाप्लव कारणेन मुजफ्फरनगरीयः एको ग्रामः जलमग्नः जातः। राज्ये 8 जनपदेषु 92,000+ 2 लक्ष संख्याकाः जनाः अनेन जलौघेन सम्प्रभाविताः सन्ति। जलोद्धारे कार्यानन्तर्गतं जलौघ प्रभावित क्षेत्रेभ्यः 11,000+ जनाः सन्ति निष्कासिताः। 7 सहायक शिबिराणि स्थापितानि सन्ति, येषु 2,000+ जनाः शरणार्थीरूपेण तिष्ठन्ति। प्रायः 20,000 प्रभावितेभ्यः शरणार्थिभ्यः पक्वान्नं सुलभायितुं 27 सामुदायिक पाकशालाः प्रचलन्ते। नैके परिवाराः तटबन्धेषु
शरणार्थित्वेन वर्तन्ते। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं निकषा अद्य प्रातःकाले प्रतिमाणा वृष्टिः सञ्जाता। वृष्टिपातेन घर्मो अपि अपचितिं गतः। कतिपय स्थानेषु जलपूरस्थितिरपि दरीदृष्टा, येन हि यातायातसम्मर्दः वर्धितः। दिल्ल्यां मिंटो रोड इत्याख्ये स्थाने एकं लोकयानम् ऑटोयानं च जलमग्नम्। ऋतुविज्ञान विभागेन राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां मंगलवासरं यावत् वृष्टिः सम्भाविता। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणस्य साम्प्रतिकीं स्थितिं पश्यामश्चेत् भारते कोरोना संक्रमणे निरन्तरं परिष्कारो जायते। भारते स्वास्थ्यलाभ परिष्कारः प्रतिशतं 68.62 मितो वर्तते। 22,477,777 षड्लक्षसंख्याकाः जनाः इदं संक्रमणं पराभूतवन्तः। सक्रिय प्रकरणानि पश्यामश्चेत् 79,370,370 त्रिलक्षसंख्याकाः जनाः अनेन संक्रमिताः सन्ति। दुःखास्पदं वर्तते यत् 16,860,000 संख्याकाः जनाः कालकवलीभूताः। अशेषे हि देशे कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं नियन्त्रयितुं नैके पदक्षेपाः समुत्थाप्यन्ते। राज्ये अपि नैके पदक्षेपाः विधीयन्ते। बिहार राज्ये कोरोना स्थितिं समीक्षितुम् अद्य केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य एकं दलं तत्रत्य यात्रायां प्रातिष्ठत्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयं केन्द्रप्रशासनं च अनवरतं बिहार राज्यं समीक्षेते। बिहारे परीक्षणं संक्रमण क्षेत्राणि अतिसंवेदनशील क्षेत्राणि च निरन्तरं चर्चमाणा सन्ति। अरुणाचल प्रदेशे कोरोना इति वैश्विक संक्रमणेन समुत्पन्न स्थितिम् अपाकर्तुं राजधान्याम् ईटानगरे क्षेत्रे कोरोना श्रृंखलां निष्प्रभावयितुम् आगम निर्गम रोधादेशः आगामी मासस्य 3 दिवसं यावत् समेधितः। इतः प्राक् राजधान्याम् ईटानगरे जुलाई मासस्य 6 दिनाङ्कतः 13 दिवसं यावत् आगम निर्गम रोधः प्रवर्तितः आसीत्। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणं प्रकरणेषु मृत्युप्रकरणेषु च उपचिति कारणात् श्रीनगरस्य अतिप्रभावितक्षेत्रेषु कश्मीर संभागे च कतिपय क्षेत्रेषु च पुनरेकवारम् आगमनिर्गमरोधादेशः प्रवृत्तः। अस्मिन् क्रमे सर्वाणि आपणानि विपणयश्च पिहिताः भविष्यन्ति। प्रशासनेन मुखावरणम् अस्थापनाय निर्धारित शुल्को अपि 1,000 रूप्यकेभ्यो 10,000 रूप्यकाणि निर्धारितः। सामाजिक दौर्यं कठोरतया प्रवर्तयितुं प्रशासनेन धार्मिक स्थलानि निकषा अतिरिक्त सुरक्षाबलं स्थापितम्। कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं निष्प्रभावयितुं वैश्विक स्तरे नैके पदक्षेपाः विधीयन्ते। तथापि इदं संक्रमणं निरन्तरं प्रवर्धमानम् इव वर्तते। साम्प्रतिकीं वैश्विक स्थितिं पश्यामश्चेत् 42,00,000 जनाः अनेन संक्रमणेन सम्प्रभाविताः सन्ति। 6,00,000 जनाः अनेन संक्रमणेन कालग्रासीभूताः सन्ति। सर्वाधिक प्रभावः अमेरिकायां दृश्यते। तत्र हि 37 जनाः संक्रमिताः सूच्यन्ते। अपि च 40,000 संख्याकाः जनाः कालकवलीभूताः सन्ति। एकस्मिन्नेव दिने 70,000 प्रकरणानि पञ्जीकृतानि, येन हि तत्रत्य प्रशासकानां चिन्ता समेधिता। यतो हि 50 प्राप्तेषु 41 प्राप्ताः कोरोना प्रभाविताः वर्तन्ते। केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसादो अवोचत् यत् कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमण स्थितौ डिजिटल इंडिया उपक्रमो एकः सशक्त माध्यमरूपेण समुद्भूतः। स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद शताब्दी स्मारक व्याख्यानमालां दृश्य श्रव्य इति अंतर्जालीय संवाद तंत्र माध्यमेन संबोधयता केन्द्रीयो मंत्री प्रसादः स्पष्ट्यकरोत् यत् देशे न्यायालयेषु कार्यजातम् अंतर्जालीय माध्यमेन सम्पाद्यते। कार्यविवरणं पश्यामश्चेत् उच्चतम न्यायालये 78%, देशे उच्च न्यायालयेषु 75,000 संख्याकेषु प्रकरणेषु
अधीनस्थ न्यायालयेषु च प्रायः 1,50,000 प्रकरणेषु वादश्रवणम् अन्तर्जालमाध्यमेन विहितम्। High courts have conducted 1,75,000 cases virtually. 1,75,000. Subordinate courts have conducted 7,34,600 cases. And Supreme Court has done 7,800 cases. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 7,34,600 केसेस वर्चुअल किए तो बड़ी बात है। The digital power, the virtual power we have. वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। Novel coronavirus comes from the family of coronaviruses. SARS and MERS were also coronaviruses. How do SARS and MERS compare with COVID-19? Are we learning from past pandemics or making the same mistakes over and over again? For an in-depth perspective on history of pandemics, watch BioQuest History of Pandemics Part 3 on DD News and DD India. Today we're going to focus on convergence and collaboration when it comes to digital innovation and startup ecosystem. I think the Atmanirbhar Bharat is an absolutely wonderful platform for us to focus on developing innovation and entrepreneurship. The demographic dividend, the pillar of infrastructure, you need digital infrastructure and digital highways. Our goal should now be to become a zero friction innovation nation. We should make sure at every one of these levels, India should remove all the friction to innovation and build, like I said, a superpower country over the next 2 decades. I believe this decade will be India's decade. It will be the decade for Indian digital ecosystem. And while we are $200 million digital ecosystem, will be $1 trillion digital ecosystem very soon in the next 5 years. To reach where we need to, we don't need to, it's not catching up that we have to do, we have to leapfrog. And to do that, We can do that? to do that, the mantra for doing that will be innovation and collaboration. At the center of Atmanirbhar Bharat, to me, which is purpose and vision and mission, is the Atmanirbhar Aurat. Love, right? You cannot be fighting a game, any game, if you have 50% of your population sitting and watching the game. वज़ीर आज़म मोदी ने असम के वज़ीर आला सरबनान सोनोवाल से टेलीफोन पर की गुफ्तगू। रियासत में सैलाब, तेल के कुएं और आग और कोरोना का लिया जायजा, हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश। दिल्ली एनसीआर में परसों तक बारिशों की पेशनगोई। बिहार के दरियाओं में तुग़यानी के सबब सैलाब की सूरत हाल हुई नाजुक। बिहार में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम का दौरा। मुल्क में कोविड-19 के केसेस की जल्द तशखीस पर मरकज का जोर। ट्रैकिंग और टेस्टिंग के जरिए की जा रही है निशानदही।
और मुल्क में 6,77,000 अफराद कोरोना से सेहतयाब। एक्टिव मामलों की तादाद हुई 3,73,000। और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 3 अगस्त तक लॉकडाउन। आदाब नाजरीन, शाम 5:15 की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास तरीन खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज असम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल से बात करके रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने असम के वज़ीर आला से बागजान तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए की जा रही कोशिशों और कोरोना वबा से बचाव के लिए की जा रहे इक़दामात के बारे में भी जाना। आज सुबह वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से फ़ोन के ज़रिए रियासत के वज़ीर आला से बात की। सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट के ज़रिए बताया कि वज़ीर आज़म ने रियासत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो रियासत के अवाम के साथ हैं। आसाम में गुज़िश्ता 2 से 3 दिन में मूसलाधार बारिश से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। हालांकि अभी भी रियासत के 26 अजला के 2,678 गाँवों में 27.5 लाख से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। सैलाब के सबब मरने वालों की तादाद 79 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 और लोगों की जान चली गई है। रियासत भर में 290 राहत कैंपों में 47,465 लोग अभी भी पनाह लिए हुए हैं। हालांकि अब आबी सतह में कमी देखी जा रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र समेत इसकी कुछ मुआविन नदियां अभी भी कम से कम 8 अजला में कुछ इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। और बिहार में सभी बड़ी नदियों में तुग़यानी से रियासत में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। मुजफ्फरपुर के एक गांव में पानी भर गया है। रियासत के 8 अजला में 2,92,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर है। सैलाब मुतासिरा इलाकों से 11,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। 7 राहती कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 2,000 ज़्यादा अफराद पनाह लिए हुए हैं। तकरीबन 20,000 सैलाब मुतासिर अफराद को खाना देने के लिए 27 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। मुतादिद कुंबों ने ऊंचे मकामात पर भी पनाह ले रखी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। हालांकि कई जगह पर पानी भरने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। दिल्ली के मिंटो रोड पर डीटीसी की एक बस और ऑटो भी पानी में डूबा नजर आया। महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी दिल्ली में परसों यानी मंगल तक बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं। देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी जगपाल सिंह से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मिंटो रोड है, कनाट प्लेस के नज़दीक का इलाका है, जहाँ पर ये डीटीसी की बस जो है वो सुबह पानी के अंदर कहीं ना कहीं डूब गई है। इसके पीछे एक कार और है, बुलेरो है, वो भी यहाँ डूब गई है। और यहाँ मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑटो दिखाई दे रहा होगा जो पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जल भराव की स्थिति पैदा हुई है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ माहौल जो है पूरी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो रखी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। हमें ऐसा आभास भी नहीं हुआ कि अचानक इतना पानी आ जाएगा यहाँ। तो जब हम बस रुकी आगे, तो बस में कुछ प्रॉब्लम हो गया। फिर देखे पानी हमारी गाड़ी के अंदर आती जा रही। 3 लोग हम सवार थे, 2 लोग को उतार के हमने वापस भेजा। एक ऑटो बस के बराबर में है, जो ऑटो वाले के पानी भी काफ़ी चला गया। उसके अंदर मनोज नाम था, तिमारपुर का रहने वाला। उसको हमने, जो 2 साथी हमारे थे, वो लेके गए हैं अरविंद हॉस्पिटल में। तो अभी उनका फ़ोन आया था कि वो ठीक ठाक है, वो घर जा चुके हैं। डीटीसी की बस में आपने डीटीसी के बस में 9 लोग थे। जो जेंट्स थे वो तो यहाँ तक पानी था निकल कर, 2 लेडी थी, उनको मैंने रेस्क्यू करके और बाहर निकाला उस साइड। 2 लेडी थी, वो काफ़ी मतलब फंस गई थी, चिल्ला भी रही थी, रो भी रही थी उस समय। तो हमने उन दोनों लेडीज़ को निकाल के ले गया। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जगह जगह पर रविवार को जल भराव की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से काफ़ी जगह पर ट्रैफिक जाम जैसी भी स्थिति पैदा हो गई। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब जायजा लेते हैं भारत में कोरोना की वबा का। भारत में कोरोना के मामलात में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन उससे भी तेज़ रफ्तारी से मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 62.86% हो गई है। 3,73,379 अफराद फिलहाल कोरोना की सदमे हैं, जबकि 6,77,422 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 से हुई अमवात की अगर बात करें तो 26,816 मरीजों की जानें तल्फ हुई हैं।
मुल्क भर में सेहतयाबी की शरह को बढ़ाने और इन्फेक्शन को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासतें भी अपनी अपनी सतह पर कदम उठा रही हैं। सेहत की मरकजी वजारत की एक टीम बिहार में कोरोना की सूरत हाल के जायजे के लिए आज रियासत के दौरे पर है। मरकजी वजारत सेहत और मरकजी हुकूमत मुसलसल बिहार की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। बिहार में जाँच, इन्फेक्शन और हॉट स्पॉट के बारे में मुसलसल गौर व खौज जारी है। और इस बीच कोविड-19 के बढ़ते मामलात और शरह अमवात में इजाफे के सबब इंतजामिया ने श्रीनगर के रेड जोन और कश्मीर के कुछ दीगर इलाकों में फिर से लॉकडाउन नाफिज किया है। इस दौरान सभी तरह के कारोबार और दुकानें बंद रहेंगी। इंतजामिया ने मास्क ना पहनने पर लगने वाले जुर्माने को भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग के सभी ज़ाब्तों पर अमल को यकीनी बनाने के लिए मजहबी मकामात के आसपास इजाफी हिफाजती दस्ते तैनात किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने ईटा तौसी करने का फैसला किया। इससे कबल राजधानी खित्ते ईटानगर में 6 जुलाई से 3 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के पेश नज़र 20 जुलाई तक लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है। अब यह लॉकडाउन 3 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। उधर खिदमात को ही इजाजत दी गई। कैब खिदमात को छोड़कर सभी गैर जरूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी जारी है। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र 17 जुलाई से पूरी रियासत में पाबंदी है। 10 अगस्त तक रियासत में जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। आसाम हुकूमत ने कल से गुवाहाटी में लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया है। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के सबब गुवाहाटी में लगाए गए 3 हफ्तों के सख्त लॉकडाउन के बाद अब कल से पाबंदी में रियायत देने का अमल शुरू हो रहा है। इस लॉकडाउन के ताल्लुक से रियासती हुकूमत ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है। ये नई गाइडलाइन आज शाम 7 बजे से 2 अगस्त की शाम 7 बजे तक पूरे कामरूप जिले में नाफिज रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी या सरकारी ड्यूटी को छोड़कर आइंदा हुक्म तक लोगों को बैन ज़िलाई आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है। सिर्फ तिब्बी और आखिरी रसूमात जैसी इमरजेंसी में ही आमदरफ्त की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के दौरान भारत वैक्सीन बनाने की जानिब तेजी से गामज़न है। सेहत के मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके बताया कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कामयाबी के साथ जारी है और इस मामले में फैसला कुन दौर में है। गुज़िश्ता कई माह से कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए जारी कोशिशों के मस्बत इशारे मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस वबा पर पूरी तरह से जीत हासिल करेंगे। सेहत के वजीर के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का इंसानी तजर्बा 2 मरहलों में होगा। मुल्क में तहकीकी इदारों में इंसानों पर तजर्बा किया जा रहा है। इस दौरान हिफाजत और स्क्रीनिंग पर जोर रहेगा और हर डेटा पर भारतीय तिब्बी तहकीक की कौंसिल यानी ICMR के साइंसदान नजर रखे हुए हैं। दिल्ली के एम्स में कल से कोरोना वैक्सीन के इंसानी तजर्बात शुरू होंगे। एम्स में 100 अफराद पर इंसानी तजर्बा किया जाएगा। 18 से 55 साल तक के सेहतयाब लोग इस तजर्बे में हिस्सा ले सकते हैं। ट्रायल में हिस्सा लेने वाले सभी अफराद की कोरोना टेस्ट के अलावा लीवर की भी जांच की जाएगी। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में सेहतयाब शख्स ही हिस्सा ले सकते हैं। वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाएंगी। पहली और दूसरी खुराक के दरमियान 2 हफ्ते का वक्फा होगा। वैक्सीन इंजेक्शन के जरिए दिया जाएगा। और तमाम साइंसदानों की कोशिशों के बावजूद दुनिया भर में कोरोना वबा तेज़ी से फैल रही है। दुनिया में इस वक्त 1,42,10,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और 6 लाख से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका में इस वक्त कोरोना मुतासरीन की तादाद 37 लाख से ज़्यादा हो गई है और 1,40,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। एक दिन में 70,000 से ज़्यादा नए मामलात ने अमेरिका के कई सूबों के गवर्नर को तशवीश में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ 50 में से 41 सूबों में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात बढ़ रहे हैं। कानून और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड-19 वबा के दौरान डिजिटल इंडिया एक ताकतवर जरिया बनकर उभरा है। वीडियो लिंक के जरिए आजहानी ठाकुर प्रसाद सदी मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि मुल्क में अदालतों में कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल मदद ली गई है। अदाद शुमार को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 7,800 मामले, जबकि मुल्क के हाई कोर्ट में 1,75,000 केस और ज़ेली अदालतों में 7,34,000 मामलों की समाअत डिजिटल तरीके से की गई। इस कोविड में हाई कोर्ट्स हैव कंडक्टेड 1,75,000 केसेस वर्चुअली। 1,75,000
subordinate courts have conducted 7,34,600 cases. And Supreme Court has done 7,800 cases. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 7,34,600 केसेस वर्चुअल किए तो बड़ी बात है। डिजिटल पावर, वर्चुअल पावर भी है। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान विधानसभा में अपोजिशन के लीडर जी.सी. कटारिया ने कहा है कि बीजेपी ने अशोक गहलोत हुकूमत ने अक्सरियत साबित करने का कोई मुतालबा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्टी जरूरत के मुताबिक फैसला करेगी। हाईकोर्ट में जो केस इस समय चल रहा है, 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बारे में स्पीकर को जो नोटिस था उस पर सुनवाई चल रही है। वो फैसला होने के बाद मैं सोचता हूँ इस बारे में कोई आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। बीजेपी ने पहले भी प्रोटेस्ट के लिए न हमने मांग की, न हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में शुरू किया गया गैस मुहैया कराने का मंसूबा लोगों के बहुत काम आ रहा है। पेट्रोल पंपों तक CNG गैस को आसानी से मुहैया कराने पर भी इस मंसूबे में तेजी से काम हो रहा है। ये रथ यात्रा से महमूरगंज का रास्ता है, रोड है। अभी चूंकि रात का समय है और काम यहाँ पे चल रहा है, जो गेल इंडिया जो काम कर रही है वाराणसी में गैस सप्लाई का, जिसमें ये पाइप लाइन बिछाई जा रही हैं। इसमें 2 तरह की पाइप बिछाई जाएंगी, जिनमें एक तो है जो गैस सप्लाई होता है पंप पे, जो हमारे जो वाहन चलते हैं उनके लिए CNG गैस भराने के लिए ये रथ यात्रा से DLW तक ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें कि गेल इंडिया काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ दूसरी लाइन जो घरों में गैस सप्लाई होता है उसके लिए भी ये लाइन बिछाई जा रही है। चूंकि अनलॉकडाउन जब शुरू हुआ है उसके बाद ये लोग तेजी से इस पे काम कर रहे हैं और रथ यात्रा से लेके जो पासपोर्ट ऑफिस महमूरगंज में है वहां तक की लाइन पे तेजी से काम चल रहा है। और हमारे साथ हैं ये मयंक शर्मा जी जो इस पे काम कर रहे हैं। ये लोग, ये क्या योजना, कितने दिन में आप लोग काम जो कर रहे हैं, कितने दिन तक पहुंचा? सर ये 2 किलोमीटर जनवरी से स्टार्ट करा था, ढाई महीने में हमने कंप्लीट कर दिया है 2 किलोमीटर। और 3,800 ये 4 किलोमीटर का लाइन है रथ यात्रा से DLW। लमसम सर ये बीच में लॉकडाउन की वजह से काम स्टॉप हो गया था, उसके बाद ये हमने 20 जून से काम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम 2 किलोमीटर लमसम 4 दिन बाद तक हम कंप्लीट कर देंगे इसको, जिसमें ये गैस पाइपलाइन के साथ साथ पंप वाला भी वो हो रहा है और जो घर पे जो गैस जा रही है उसका भी साथ के साथ पाइप डल रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, मामूरगंज, वाराणसी। वज़ीर आज़म मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स की तादाद 6 करोड़ को पार कर गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मकबूलियत के एतबार से वज़ीर आज़म मोदी दुनिया के सर फहरिस्त सरबराह मुमलिकत हैं। उधर वज़ीर आज़म के दफ्तर के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करने वालों की तादाद 4.25 करोड़ है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वज़ीर आज़म अहम जानकारियाँ शेयर करते हैं। उधर नरेंद्र मोदी ऐप को भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन, राशन के वितरण के ऑनलाइन हो जाने और राशन की दुकान पर आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए से संभव हो पाई पोर्टेबिलिटी। कुछ राज्यों ने राशन कार्ड की राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी लागू की है। अब इन राज्यों के लाभार्थी राज्य के किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। पहले अपनी दुकान पर से राशन लेते थे, काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब नगर में अच्छी सुविधा हो गई है, जो हम दुकान हमारा बंद भी रहता है तो हम कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने राशन की दुकान बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ उन लाभार्थियों को जिन्हें काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने हिस्से का कुछ राशन अपने काम की जगह ले सकता है, जबकि उसका परिवार बाकी राशन अपने गांव में ले सकता है। पोर्टेबिलिटी के बाद अब दुकानदारों की मनमानी खत्म हो गई है। जहां से हम पहले राशन लेते थे उनका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था।
नई सुविधा चलने के बाद अब हम यहाँ से राशन लेते हैं और हमें सही समय पर राशन मिल जाता है। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। जब से पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हुई है, हमारे सारे राशन डीलरों में वितरण के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। हर डीलर अधिक से अधिक वितरण करना चाहता है और कार्डधारी को भी कोई समस्या नहीं हो रही है। हालांकि ये सुविधा अभी कुछ राज्यों में ही ली जा सकती है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि देश के हर नागरिक को ये सुविधा मिले कि वो अपने राशन कार्ड की सुविधा देश के किसी भी राज्य में ले सके।